माननीय सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, जय श्री राम। ये है पहला नंबर। नियम 377 में आप लोग को बोलने की अनुमति दिया जा रहा है। एक सेकंड। देवाश्री चौधरी जी। थैंक यू मैडम। बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। काइंड अटेंशन नाम बोल दिए हैं ना, बोल लेने दीजिए, कृपया बोल। of the Honorable Minister of Youth and Sports Affairs regarding establishment of the Paramount Training Center of SAI at Raiganj, West Bengal. North Bengal, like many other areas, is usually underdeveloped region in the country, even having high potentialities in so many fields, being games, sports and athletics are ones of many. Especially in Raiganj, so many renowned personalities have left their footprints in the various fields. Having plenty of talents in such various fields, scarcity of training facility in the locality is looming large, hindering the blooming of the talented youth, which can be warded off by establishing the Sports Authority of India's training camp permanently at Raiganj. It is pertinent to mention here that 3 delegations of the SAI came and inspected the sports infrastructure of the leading club named Raiganj Sports Club and appeared apparently satisfied with the existing parameters compared to the required ones. Hence, I urge upon the Union Government to establish the Paramount Training Center of SAI at Raiganj to beneficially explore and unearth the talented youths for their proper and scientific grooming in their respective fields of sports, games and athletics. Thank you. रमापति राम त्रिपाठी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली हमारी 2 विधानसभा फाजिल नगर और तमकुही राज जो कुशीनगर जिले में पड़ती है और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है, इसमें एक तरफ गंडक नदी बहती है। लोग जीविका और अन्य कार्यों के लिए गोरखपुर आते जाते हैं। यहाँ बॉर्डर पर स्थित तरिया सुजान रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन संख्या 1580 जो गोरखपुर से पाटलिपुत्र की ट्रेन है, गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाते समय तो तरिया स्टेशन पर रुकती है, लेकिन आते समय इसकी वापसी के समय रुकने की व्यवस्था नहीं है। ट्रेन को वापसी के समय भी रोका जाए। ट्रेन संख्या 15,113 और 15,114 गोमती नगर से चलकर छपरा कचहरी तक जाती है। ये गाड़ी भी किसी तरफ से नहीं रुकती है तथा इस गाड़ी को भी गोमती नगर के छपरा कचहरी तक तरिया सुजान रेलवे स्टेशन पर रोका जाए, जिससे कि यहाँ के यात्रियों को, यहाँ से लोगों को जाने आने की सुविधा हो सके। साथ ही मेरी आपसे आग्रह है, जो सिवान से बाया थाने होकर गोरखपुर होकर गाड़ी संख्या 75,113 होती है, वो कोरोना काल में बंद है, जिससे कि यहाँ के लोगों की काफ़ी असुविधा हो रही है। इस गाड़ी को भी चालू किया जाए। इसके अतिरिक्त दुधही रेलवे स्टेशन पर प्रशासन द्वारा एक अस्थायी आरक्षण काउंटर खोलना आवश्यक है, जिससे कि वहाँ के यात्रियों की लाभ मिल सके। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उक्त ट्रेनों का ठहराव तरिया सुजान रेलवे स्टेशन और दुधही कराया जाए, जिससे इसकी सुविधा हमारे संसदीय क्षेत्र को लोगों को मिल सके। आपने समय दिया, इसके लिए आदर सहित आभार व्यक्त करता हूँ। सुशील कुमार सिंह जी, माने सुशील कुमार सिंह जी, अगला अभी
अभी 377 है, इसलिए आप बढ़िए। जो नियम चल रहा है, प्लीज प्लीज, अब 377 के नियम में आप लोग को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। सुशील कुमार सिंह जी, सुरेश पुजारी जी। Thank you, madam. The increasing number of kidney diseases in village Dangbahal, Goranmunda, Jagalpat, Said, Dungripali, etc. of Gaisilet block, and again village Kurla, Bordol, etc. of Borgad block, village Bagbahal, etc. of Potabira block, Bhalupalli of Potabira NAC, villages like Pipalipalli of Bijepur block, and many other areas of Borgad district, madam, and in many rural areas, including village Kuakunda and other villages of Lakhanpur block of Jharsuguda, and also village Bonsajal, Kodiligad, Kudabahal, etc. of Redhakol block of Sabalpur district, as well as Madhopur, Netrabahal, Bolonda, etc. of Barcode block, as well as village Kalonda of Tilaibani block of Devgarh district in the state of Odisha has created panic in the region and heading towards an alarming situation day by day. State media also is reporting it now and then without invoking any response from the state government. Many young persons have died, madam, and hundreds are suffering from it in many villages in that area. Contaminated water is believed to be the reason behind it, and the contaminated water comes from the industry in the Jharsuguda-Sambalpur corridor. But the reason has not yet been identified, let alone its eradication. The deficiency in the healthcare in the western part of Odisha is adding woe to agony. A serious investigation into the matter in all those areas and its eradication is the call of the hour. So I request the Honorable Union Health Minister through you, madam, to kindly call for a report from the state government, send a team of experts to visit the above mentioned affected areas, collect sample of water, soil and other required items, get it examined and find out the region of the disease and address it by establishment of super specialist cancer hospital in my area, madam, and also to take necessary steps for the treatment of the patients now suffering in that area in specialized hospital like AIMS at government cost. Thank you, madam. श्रीमती सुप्रिया सूले जी। मैडम, वी आर विलिंग टू कोऑपरेट। कल भी हमने एक मिनट कल भी हमने सरकार को विनती आज भी कर रहे हैं कि हमारे 4 जो मेंबर हैं उनको निकाल दिया है। हमारी विनती है सरकार को उनको माफ करके फिर प्लीज वापस भेजें। हम सरकार हम डिबेट चाहते हैं, हम सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। सिर्फ हमारे मेंबर्स को वापस भेजिए और हम कोई वेल में नहीं जाएंगे। हम सबकी तरफ से मैं बोल रही हूँ, हाउस चलाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। श्री सुदीप जी बोलिए भाई। सुदीप जी, श्री सुदीप जी बोल। Madam. Yes, I am telling. Madam, here. My humble. Who? मैडम कम से कम वो पीछे तो जाए ना, अपने सीट पर बैठने दो, बैठने दो पहले तो। ऐसे क्या है मैडम? डिसिप्लिन बैठ जाइए, बैठ जाइए, ऐसे कैसे आप लोग प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए जी। Madam, I also propose that 4 members of this house have been suspended. If it is the feeling of the house that if suspension is withdrawn, then the house can run smoothly. And we will all be glad. Honorable Joshi ji has already announced that government is prepared to discuss on the issue of price rise. We are also prepared to take part in the debate. So let this issue be sorted out as soon as possible and let the debate start. मैडम जोशी जी, प्लीज जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं? जोशी जी, राजा, अच्छा ठीक है, इसी विषय पर बोलना है, इसी विषय पर। Thank you, Madam Chairperson. See, what happened yesterday,
I think that it is not good for the healthy democracy. I have been in the house either this side or that side for a long time. But coming to democratically giving protest with the placard is not unknown to this house. Fortunately or unfortunately, up to the government, I think that they want to expel the members. Accordingly, it was done by the chair. Please, with folded hand, I am telling, don't believe numerical strength alone in this house. You may be elected by numerical strength, but healthy debate will not stand before the numerical strength. So we want democracy. Please reconsider. Withdraw the decision. Withdraw the decision. Thereafter, we will think to participate in the debates. So on behalf of DMK, on behalf of my leader, I request that the suspension can be revoked immediately forthwith. बोल रहे हैं, अरे आप ही लोग की बात को बोल रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। सुदीप जी बोल ही लिए। ये सुदीप जी को नेता नहीं मानते। नहीं, बैठे ना सुदीप जी, आप बोला उसके बाद ऐसा करते तो कैसा दादा? आपका नेता बोला है ना, नहीं आपका नेता बोला है भाई। सर मैडम मैं ये बोलना चाहता हूं कि डे 1 ऑल पार्टी मीटिंग से लेके आज सुबह तक मैंने स्पष्ट रूप से ये कहा हूं कि सरकार आपका जो मांग है उसके चर्चा के लिए तैयार है। और आप सुबह भी मैंने आग्रह किया, अगर आज भी चर्चा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो इसके बोलने के बावजूद भी इतना दिन लास्ट वीक पूरा बर्बाद हो गया और इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, अभी भी वही हो रहा है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, अगर वो चाहते हैं तो हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये गारंटी लेगा क्या वो फिर से वेल में नहीं आएंगे, फिर से प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे और प्ले कार्ड लाके स्पीकर से मुंह के सामने हम नहीं लगाएंगे, ये गारंटी लेने के लिए तैयार है क्या? और कभी भी मैं एक मिनट देखो, हाँ ठीक है आपके पास No, I would like to only request when he has spoken, Rajaji, I have got lot of regards for him. I have listened to you. Please listen to me. So I am only going to tell, if they are ready to take the guarantee on their party behalf, even on the behalf of the Congress party, because all the members who have been suspended, they are from the Congress party. If they are ready to take the responsibility that hereafter they will not bring the placards, I would like to recall again here, when we were in opposition, once myself I had come here and Pranav Mukherjee ji, who was then leader of the house, he opposed it. Then Advani ji called me. I was trying to argue with him. Of course, I was too junior then. It was my mistake. Then Advani ji called me, said, you don't go this side. They come this side. They stand before the Prime Minister. They stand before, they try to raise the slogan. And not only that, one minute, not only that, they are trying to show the placard in front of the face of the speaker. Is it fair thing? Is it fair thing? That's why I even with the permission of speaker से इजाजत है तो हम विथड्रॉ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको गारंटी लेने के तैयार है क्या? वो प्लेकार्ड लेके नहीं आएंगे अंदर और वेल में नहीं आएंगे, ये तो कहने के लिए तैयार है क्या? जब हम बोल रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है, आपको प्रॉब्लम क्या है गारंटी लेने के लिए? राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। आजकल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर मसाले बनाने वाली एक कंपनी का विज्ञापन प्राय आता है। विज्ञापन में सेना के एक अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी से भोजन लाकर मेज पर लगाने का निर्देश दिया जाता है। अपने अतिथियों के साथ भोजन की प्रतीक्षा कर रहे इस फौजी तक जब 2-3 बार कहने के बाद भी भोजन नहीं पहुंचता तो वह स्वयं रसोई की तरफ जाता है तथा अपने कुक को मसालों के कारण अत्यंत स्वादिष्ट बने व्यंजन को खाते हुए देखता है। नाराज फौजी अपनी बंदूक के साथ विदूषक के अंदाज में अपने कर्मचारी को मारने के लिए मेज के चारों ओर चक्कर लगाता है। महोदया, किसी भी विज्ञापन में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर रहने वाले सैन्य कर्मी का इस प्रकार की भूमिका में उपहास का विषय बनाना उचित नहीं है तथा सेना के प्रति जन सामान्य के आदर के अनुरूप भी नहीं है। सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृपया इसका उचित संज्ञान लेते हुए इस प्रकार के विज्ञापनों को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
आपने अवसर दिया, धन्यवाद। डॉक्टर संघमित्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया, आज हमें नियम 377 के तहत अपनी बात को रखने का आपने मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। महोदया, माता सावित्रीबाई फुले का जीवन कई दशकों से महाराष्ट्र के गांव कस्बों के साथ साथ पूरे देश की औरतों के लिए प्रेरणादायक रहा है। उनकी जीवनी एक औरत के जीवट और मनोबल को समर्पित है। माता सावित्रीबाई फुले के कार्यक्षेत्र और तमाम विरोध और बाधाओं के बावजूद आपने संघर्ष से डटे रहने और उनके धैर्य और आत्मविश्वास ने भारतीय समाज में स्त्रियों की शिक्षा में अलग जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे प्रतिभाशाली कवित्री, आदर्श अध्यापिका, निस्वार्थ समाज सेविका और सत्य शोधक समाज की कुशल नेतृत्व करने वाली महान नेता थी। माता सावित्री ज्योतिबा दंपति ने इसके बाद अपना ध्यान समाज सेवा की ओर केंद्रित किया और उन्होंने सबसे पहला 1 जनवरी सन 1848 को उन्होंने पूना के बुधवारा पेठा में पहला बालिका विद्यालय खोला, जिसकी प्रधानाध्यापिका स्वयं माता सावित्रीबाई फुले रही। महोदया, मैं आपके माध्यम से बालिकाओं में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, इसकी सरकार से मांग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी। सभापति महोदया, आपने 377 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महोदया, मैं बिहार के अररिया जिला से आता हूँ। महोदया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो 4-5 जिले हैं, ये नेपाल का सटा हुआ जिला है। हमारे बगल में नेपाल आता है। नेपाल में अधिक वर्षा के कारण लगातार वहां बाढ़ आती है और महोदया, जब बाढ़ आती है तो फसल तो बर्बाद हो ही जाता है। हम लोग जो रोड, पुल, सड़क बनाते हैं 5 साल, वह 1 दिन में लेके चला जाता है। जान माल का क्षति होता है। महोदया, मैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री को धन्यवाद करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को। हेलो, लिखा हुआ पढ़े, आपका लाइट जल रहा है। आवाज नहीं जा रही है? हाँ, जा रही है। लिखा हुआ पढ़िए, लिखा हुआ। महोदया, मैं अपनी बातों को 1 मिनट में खत्म करूंगा। महोदया, कोसी मैची नदी जोड़ योजना भारत सरकार का जल शक्ति मंत्री ने स्वीकृति दिया है और यह जो है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से ना लिखा हुआ पढ़िए ना। लिखा हुआ आपके पास नहीं है क्या? नहीं, उसी को मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वो देख कर पढ़िए। 377 देख कर पढ़ा जाता है। अच्छा महोदया, हमारा जिला अररिया नूना, बकरा, परवान, कनकई, सुरसर, भलवा जैसी अनेक नदियां हमारे जिला में चलती है और नेपाल से सटा हुआ वह पहाड़ी नदी है। महोदया, पानी बारिश होने के कारण यह जो है फसल बर्बाद हो जाता है और वहां पर जो है, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि माननीय जल शक्ति मंत्री के पास योजना लंबित है, इनको जल्द से जल्द स्वीकृत है, राशि का आवंटन किया जाए और ताकि बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, किसानों का फसल जो है वो बचेगा और हमारा रोड, पुल, सड़क जो बनता है वह, और 2 लाख हेक्टेयर का जमीन का सिंचाई का पटवन होगा। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्दी आवंटन किया जाए ताकि हमारा 4 जिला अररिया बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। जो लिखा हुआ है वही रिकॉर्ड में जाएगा। श्री अजय निषाद जी, श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद सभापति महोदया। यह हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में विश्वव्यापी कोरोना महामारी का मुकाबला कर देश एवं देशवासियों का जान बचाया गया है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में देश के महानगरों एवं ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सालयों का निर्माण किया जाने की आवश्यकता है और साथ ही ये विशेषता महानगरों में 300 वर्ग फीट के आवास में रहने वाले नागरिकों को निजी चिकित्सालयों में
चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु एक आई कार्ड जारी कर उनके 3-4 दिनों के उपचार की आने वाली कई लाख रुपए की राशि को मात्र हजारों की राशि तक सीमित रखने और उनकी बाकी राशि को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि देश के निजी चिकित्सालय जहां मरीजों से उनके 3-4 दिनों के उपचार के कई लाख रुपए वसूल किए जाते हैं, उनके इस तरह के अनुचित व्यवहार पर अंकुश हेतु केंद्रीय स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आपका भी मैं संरक्षण चाहूंगा क्योंकि यह आपके भी जिले से जुड़ा हुआ मामला है। यह पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में अभी तक हवाई अड्डा जो है वह नॉन ऑपरेशनल है और यह 2015 में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 2015 के पीएम पैकेज में उन्होंने 250 करोड़ रुपए रक्सौल हवाई अड्डे के लिए दिया था और 121 एकड़ जमीन की आवश्यकता उस पे थी, जिसके लिए 3 बार मांग केंद्र से किया जा चुका है। बिहार विधानसभा में जवाब दिया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में हमसे कोई मांग जमीन के लिए नहीं की गई है। अतः आपके द्वारा मेरा यह अनुरोध रहेगा कि रक्सौल हवाई अड्डा नेपाल के या सबसे बड़ा जो ड्राई पोर्ट है और एक तरह से नेपाल की आर्थिक राजधानी है बीरगंज, उसके साथ हमारे लोकसभा से संबंधित है और सारे नेपाल के इंडस्ट्रीज वहीं से गुजरते हैं। इसलिए यह 60 साल पुराना हवाई अड्डा जो है इसको चालू कराने में मदद किया जाए। केंद्र सरकार को यह अनुरोध किया जाए कि वह राज्य सरकार के साथ बैठ करके और राज्य सरकार भी वित्तीय वर्ष की बात नहीं करे, 121 एकड़ जमीन दे दे, जिससे कि चंपारण में आजादी के अमृत महोत्सव पर चंपारण को एक हवाई अड्डा मिल सके। इस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री रविंद्र कुशवाहा जी। माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर में आज भी हजारों एकड़ भूमि है। हम सभी जानते हैं कि बंजर भूमि का देश हित में प्रायः कोई उपयोग नहीं होता है, पर खाली पड़ी इस जमीन पर यदि हमारी सरकार सोलर प्लांट लगा दिया जाए या सरकार किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकृत कर दे तो इस जमीन का ग्रीन एनर्जी के लिए बेहतरीन सदुपयोग हो सकता है तथा इसका लाभ पूर्वांचल के अन्य जिलों को भी मिलेगा। इससे एक बड़े क्षेत्र को बिजली आपूर्ति की जा सकती है। आपको अवगत कराना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लार ब्लॉक के महाल मंझरिया गांव में हजारों एकड़ भूमि है, जिस पर पिछले कई सालों से सोलर प्लांट लगाने हेतु मैं प्रयासरत हूं। इस समय पर कई बार पत्र और सदन के माध्यम से मेरे द्वारा मांग की गई है, परंतु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। यह सरकारी भूमि के अतिरिक्त किसान भाइयों ने भी अपनी भूमि सरकार को देने हेतु तैयार हैं। महोदय, इस भूमि पर सोलर प्लांट लगाने से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा, जिससे इस क्षेत्र की बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। अतः मेरा सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सलेमपुर के लार ब्लॉक के महाल मंझरिया में एक केंद्रीय सहायता से सोलर बिजली उत्पादन का केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसर का सृजन हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री बीएन बच्चे गार्ड जी नहीं है। श्री लालू भाई पटेल जी। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे आपने 377 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि काफी समय से हमारे दीव और गुजरात के हमारे मछुआरों जो पाकिस्तान की जेल में कैद है, उनको छुड़ाने की कोई कार्यवाही हुई है। एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके जेलों में करीब 618 मछुआरों अभी भी कैद में है, जिसमें 167 ऐसे
है जिनकी सजा 2018 में खत्म हो गई, फिर भी छूटा नहीं गया। इसके साथ करीब 1513 बोट भी अभी उसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में। अध्यक्ष जी, 4 सालों भी ज्यादा हो गया, पाकिस्तान ने किसी भी मछुआरों को छोड़ा नहीं। बोट की तो बात दूर और छोड़ते नहीं। आपके माध्यम से मैं माननीय विदेश मंत्री को निवेदन करता हूं कि मछुआरों को पकड़े जाने से उनके परिवार में दहशत रहते कि यह मछुआरों की पाकिस्तान की जेल में क्या हालत है, तो पाकिस्तान से बातचीत करके उन्होंने छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू करे और जल्द में जल्द छुड़े लावे। अध्यक्ष जी, मैं यह भी जानता हूं कि माननीय विदेश मंत्री प्रयास कर रहा है। हमारे देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद 57 बोट और 2500 जैसा मछुआरों को छोड़ा लिया था। तो मैं आपके माध्यम से मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है। अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 377 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। ये मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से ये समस्या है और ये समस्या गोरखपुर, भटनी, वाराणसी होते हुए प्रयागराज तक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल खंड है महोदया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि रेल इस वक्त अद्भुत रूप से संचालित है हर जगह, लेकिन कुछ कुछ खंड छूट जाते हैं और उसमें ये महत्वपूर्ण खंड है। इस रोल में खंड पर लाखों यात्री यात्रा करते हैं। गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज व्यापारिक और धार्मिक पर्यटन के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है महोदया। लाखों लोग गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के पुत्र कुश की नगरी कुशीनगर में भगवान बुद्ध के तीर्थस्थल महापरिनिर्वाण स्थली से पूजा अर्चना करने आते हैं। इसी प्रकार कबीरदास जी की नगरी संत कबीर नगर और देवरिया में देवरा बाबा के तपु भूमि घूमने दर्शन पूजन करने भी आते हैं महोदया। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, संत कबीर नगर तथा बिहार प्रांत के गोपालगंज व सिवान के लाखों लोग रोजाना वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर एवं भगवान बुद्ध की तीर्थ यात्रा स्थली सारनाथ में पूजन दर्शन करने आते हैं। इसी प्रकार गंगा, यमुना की सरस्वती तीनों नदियों के संगम स्थली तीर्थ नगरी प्रयागराज में स्नान करते हैं महोदया। व्यापार की दृष्टि से भी इन जिलों में लोग व्यापार जैसे पान, फल, फूल, अन्य बहुत सारे व्यापार, मिठाइयां, साड़ियां तथा अन्य व्यापारिक दृष्टिकोण से हजारों लोग इस रेलखंड पर यात्रा करते हैं। इस रेलखंड पर कोई महत्वपूर्ण रेलगाड़ी न होने के कारण लाखों यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है महोदया। मैं इस मान्य सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से ये मांग करता हूं कि गोरखपुर, भटनी, वाराणसी होते हुए प्रयागराज तथा शताब्दी रेलगाड़ी का कोई सुपर फास्ट कुर्सियान रेलगाड़ी का संचालन किया जाए, जिससे व्यापार व धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद महोदय। श्री चुन्नी लाल साहू जी। श्री चुन्नी लाल साहू जी। ठीक। सभापति महोदया, 377 में आप बोलने की अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। महासमुंद लोकसभा अंतर्गत गरियाबंद जिले के वनांचल क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण दिनांक 13 जुलाई 2022 को पैरी नदी के बाढ़ आने के कारण नदी के दाईं तट पर ग्राम कोपरा के समीप निर्मित अस्थायी बंध की बहुत कम ऊंचाई होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है और बाढ़ की पानी ग्राम कोपरा, तर्रा और कुरुसकेरा एवं सुरसा बांधा में घुस गया है, जिससे बाढ़ के साथ बहाव में आए रेत मिट्टी से उक्त ग्राम के लगभग 50 एकड़ खेत में लगे धान की फसल बुरी तरह नष्ट हो गई है। महोदया, उक्त तटबंध का तत्काल निर्माण कराने की आवश्यकता है, अन्यथा 1000 एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो जाएगी। वर्तमान में नष्ट हुए फसल की जांच दल द्वारा मुआयना करा करके RBC 64 के तहत मुआवजा प्रदान करने की कृपा की जाए। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरे द्वारा पुरजोर गुजारिश है कि किसानों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए अतिशीघ्र उचित कार्रवाई के लिए विभाग को निर्देशित करने की महान कृपा करें। धन्यवाद सभापति महोदया। श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी।
श्री दुष्यंत सिंह जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैम, you matter rule under 377, the 20451, 20452 New Delhi Sogaria Superfast Express train runs between New Delhi and Sogaria Kota. This express train starts at 7:10 and reaches at 1:25 in Kota. However, the only train 11603 leaving Sogaria to Bara leaves in the morning at 8:38 a.m. Such before the express train arrives, so there is a clearly a poor connectivity between Delhi and Bara, and that is causing severe inconvenience for passengers. There has been long-standing demand from the people of Bara district for the extension of the New Delhi Sogaria Express from Sogaria to Bara station. This connection will help them commute to districts of Bundi, Savai Madhopur, Karoli, Bharatpur, Mathura and Delhi. Bara district also has an NTPC power station, also many power plants that employ workers from across India and regularly engage engineers as well. The people of Bara frequently travel to the above-mentioned places for carrying out their economic, educational and other activities. Hence, I request the Honourable Minister for Railways to extend the Sogaria Express to the Bara railway station, which is an aspiration district. Thank you, ma'am. Shri N. Redappa ji. Thank you very much, Madam ji. Andhra Pradesh has vast railway network covering distance of 4,000 kilometers. The state experiences heavy traffic on his railway routes throughout the year. To ease the movement of trains within the state, the construction of 12 rail overbridges and rail underbridges has been approved by the central government. These 12 ROBs and ROBs are spread across various railway stations in the state, such as Tirupati, Venkatachalam, Venkatagiri, Mallanur, Chandragiri, Gudupalli, Kuppam, Pakala, and Guntur. The specific requirements of these projects have been already submitted by the state government to the Ministry of Railways. All formalities on the part of the state government have also been completed. Despite constant requests from the various representatives of the state, these ROBs and RUBs have not been completed by the ministry. The pending construction is causing inconvenience to the local residents and the visitors of the areas due to the frequent stagnation of rainwater near the construction sites. Hence, I urge the Minister of Railways to kindly expedite the construction of these 12 pending bridges, the ROBs and RUBs, for the welfare of the people in Andhra Pradesh. Thank you very much. Shri Saugat Rai ji. Thank you, madam. सर बहुत मुझे वाहवाह दे रहे, इनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप भी ये सस्पेंशन विथड्रॉ कर लीजिए और भी वाहवाह दे। हल्ला करना बंद कर दीजिए, हम लोग तो सर मैटर अंडर रूल 377. Sir, soldiers should be recruited for 4 years only under the Agnipath scheme with no retirement benefits like pension and medical insurance. After 4 years, only 25% of recruits would be absorbed as regulars for 15 years, while the remaining 75% will be relieved. Sir, youth feel that the government policy on recruitment to the armed forces is playing with their career. Youth are questioning as to what will happen to their career after 4 years when there is so much unemployment in India. That is why youth are setting fire to the trains. The railway minister is here.
he would be able to tell us how much loss the railways have suffered due to protest in the हुआ आप पढ़िए। हाँ, पढ़े। सर सुनिए ना, दूसरा रिकॉर्ड में नहीं सर जाएगा। सर मैडम, while youth are protesting in the street, fearing their career will be jeopardized under the scheme, political and security experts criticize the scheme for other reasons. They argue that if a large number of youngsters with weapon training and licensed weapons and no adequate source of livelihood are sent back to their villages, it will pose a security threat and it might cause severe damage to the law and order situation, even if a small percentage of such youth take to crime just to fulfill their basic need. You know all about guns, madam. That's why I am posing this to you. I urge upon the government. मैं लाइन देख रही हूँ, एक एक लाइन देख रही हूँ। I urge upon the government. मैडम, आप तो बंदूक के बारे में सब जानते हैं, आपका स्टोरी हमें पता है। I urge upon the government to consider the serious impact of such a wrong decision like Agnipath and take immediate steps to withdraw the Agnipath scheme for the interest of the nation. I also urge the government to withdraw the suspension of the 4 Congress members. Thank you, ma'am. श्री राजेंद्र गावित जी। हाँ, उसको कहे रेकर्ड्स निकालने के लिए। जी जी, निकाल दीजिए। क्या बोलते रहते हैं आप, इतना सीनियर हैं। इतना निकल गया। अध्यक्ष महोदय, the Indian Railway Government of Maharashtra through Mumbai Metropolitan Region Development Authority, MMR, Mumbai Railway Vikas Corporation and World Bank are involved in implementing investment plan for improving and expanding the transportation network of Mumbai. Metro system of 450 km is to be constructed under MMR corridor number M13 from Shivaji Park, Mira Road to Virar. 23 km length is to be constructed to link Virar-Vasai Corporation area. The corridor is DPR stage at present. As per the plan, and corridor is to be constructed during 2027 to 2031 and is likely to be operated by 2031. A large part of the population of Mumbai, near about 24 lakhs in Vasai Virar Mahanagar Palika, residing in Virar and go to various parts of the Mumbai for their work, jobs through local trains. The local trains are unable to cope with the jobs through increasing number of passengers, and the situation is deteriorating day by day. Only construction of metro corridor number M13 from Shivaji Park to Mira Road, I request to government for early construction of metro corridor number M13 from Shivaji Park to Virar, DPR up to 23 kilometer lengths for the of the people of Vasai Virar and Palghar. धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर जी प्रसाद, चंदेश्वर प्रसाद जी। धन्यवाद महोदय। चंदेश्वर प्रसाद जी। मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद अंतर्गत पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल में बख्तियारपुर से राजगीर होते हुए गया रेलखंड पर भाया जेठियन होते हुए एक हॉल्ट की आवश्यकता है। उसका जगह का नाम है झरना नोडिया। या उप स्टेशन बनाया जाए, हॉल्ट या उप स्टेशन बना अति आवश्यक है, क्योंकि हॉल्ट बन जाने से क्षेत्र के काफ़ी गांवों को फायदा होगा और वे रेल सुविधा एवं विकास से जुड़ जाएंगे। ग्राम झरना नोडिया महादलित आदर्श ग्राम सोबरन बिघा, जमुनापुर, सीतारामपुर, पंडितपुर, सोहारी, एर, बिकैपुर, चरवारा, मंझौली तथा झाड़ू बिघा जैसे आबादी वाले
गांव लाभान्वित होंगे। नटेसर जंक्शन से यह प्रस्तावित हॉल्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर है एवं जेठियन स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मैडम, हम आग्रह करते हैं सरकार से कि इस पर जल्द से जल्द हॉल्ट या बनाया जाए। यह हॉल्ट बनने से भारत सरकार रेल मंत्रालय के लिए भी अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। झरना धाम एक पर्यटक स्थल भी है। इस धाम पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं तथा शुभ कार्य एवं विवाह समारोह का आयोजन होता है। इस स्थान पर प्राकृतिक रूप से ठंडे जल की झरना भी बहती है, अतः पर्यटन के दृष्टिकोण से भी झरना हॉल्ट की अति आवश्यकता है। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है मैडम कि उक्त स्थान पर अस्थायी रूप से झरना हॉल्ट अथवा उप स्टेशन का दर्जा देकर निर्माण कार्य कराने की कृपा करें, जिससे सभी ग्रामवासी रेल सुविधा का लाभ ले सकें। धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर साहू जी। धन्यवाद मैडम। मैडम, फॉर द ओडिशा स्टेट rupees 1195.58 crore towards material and administration component for Q1 of financial year 22-23, in addition to the previous year liability of rupees 480.82 crore are yet to be cleared by the Ministry of Rural Development, and delays in release of funds was the problem in previous financial years also. And then our Honorable CM, Sri Naveen Patnaik ji, wrote to the Honorable Prime Minister urging to release NREGA funds. The livelihood of lakhs of workers from rural areas depend on the wages released by the central government, and hence delays beyond the set 15 days after the closure of master roll as per MNREGA 2005 must be avoided. Moreover, delays in payments in suppliers and contractors could disrupt progress of future projects due to erosion of trust. Keeping in view of the problems of common man, State has already requested in 2 separate letters to release material funds to Odisha. Hence, I urge through you, Madam, to the Honourable Minister to immediately pay heed to this problem and facilitate the release of all pending MNREGA dues to Odisha for the current financial year and previous financial years, and also take measures to avoid this recurring problem in the future. Thank you, Madam. श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। सभापति महोदया, आपने नियम 377 के अधीन सूचना पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जिला श्रावस्ती एवं जिला बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा संचालित होती है। यहाँ प्रतिवर्ष क्लास में 6 में 80 बच्चों का नया एडमिशन होना चाहिए, परंतु विद्यालय में पर्याप्त संख्या में छात्रावास हॉस्टल नहीं होने के कारण मात्र 40 बच्चों का ही नया एडमिशन दोनों जनपदों में होता है। महोदया, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जिला श्रावस्ती एवं जिला बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में पर्याप्त संख्या में छात्रावास हॉस्टल का निर्माण कराया जाए, जिससे प्रतिवर्ष 80 बच्चों का दाखिला हो सके। साथ साथ वहीं श्रावस्ती एवं बलरामपुर में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक एवं स्टाफ की कमी होने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती एवं बलरामपुर में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक एवं स्टाफ को बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वल्लभ नैनी जी बालसौरी। Madam, बालासौरी। we have been screaming day in and day out, water should not be wasted. When government of Andhra Pradesh uses surplus water,
going waste into sea, Krishna River Management Board including such water in AP's account. When all projects, Jurala, Srisailam, Nagarjun Sagar, Pulichintala and Prakasam Barrage on Krishna River are brimming with water, KRMB is coming in way when government of Andhra Pradesh intend to use such water to divert to other project upstream without wasting it. If one looks at recommendation of technical committee CWC, it says that flood water going waste into sea should not be included in state quota. Secondly, Bachawat Tribunal has also liberty to AP to use flood water as it wishes. So I fail to understand reason and justification behind Krishna River Management Board includes flood waters otherwise going to waste into sea from Prakasam Barrage to AP's account. In view of the above, I requested you, Honorable Prime Minister, to intervene and see the AP uses surplus flood water. Thank you, Madam. ठीक सदस्यगण जो शून्यकाल के दौरान जो उठाना है, एक एक मिनट टाइम दे रहे हैं आप लोग, प्लीज उठाने का काम करिए। श्री अनिल फिरोजिया